The world has witnessed two devastating world wars. First World War from 1914 to 18 and the Second World War from 1939 to 45. And in this video, I'm going to discuss about the First World War, which is chapter number 10 of class 10 ICSE, the First World War from 1914 to 18. And according to your further reduced syllabus, in this chapter, we have to study only about these topics like the causes of the First World War, only the causes of the First World War. As we all know that there are two types of causes behind the First World War, long-term causes and immediate cause. So I'll be covering that long-term causes and immediate cause also. And under long-term causes, according to your further reduced syllabus, you have only the nationalism and imperialism, and after that armament race or race for armament and division of Europe, and lastly the immediate cause or Sarajevo murder case or crisis. Clear? And nextly you have consequences of the First World War or impacts of the First World War, and under these consequences you have only Treaty of Versailles. So Treaty of Versailles means the treaty signed between Germany and the Allied forces just after the First World War or after the surrender of Germany in the hand of Allied forces. The Treaty of Versailles was signed. Now here only you have to study causes and the consequences in this chapter, First World War, and this same chapter you will get in class 11 also. Again you will get this same chapter in class 11 if you take history then. Before studying the causes of the First World War, here I would like to give you some important information regarding First World War. So the First World War was fought between two powers. One was Allied power, and on the other hand Central Power. Okay, Central Power. Central Power was headed by Germany, and other countries of Central Power were like Austria, Hungary, okay, Austro-Hungary Empire, Italy and all. Though Italy actually after the starting of the First World War they changed their group. Okay, on the other hand Allied power mainly of England, France, okay, England, France, Russia. For the First World War, the whole Europe was divided into two hostile groups. Number one was Triple Alliance. Okay, Triple Alliance. Before that, it was Dual Alliance. Dual Alliance was signed between Germany as an Austria-Hungary Empire. Okay, and after that, Italy also joined the Dual Alliance, and it became Triple Alliance. Okay, and it was founded in 1882. Triple Alliance. You know that Bismarck, or the Chancellor of Germany, after the unification of Germany, Bismarck became the Chancellor of Germany. So Germany's main aim was to isolate France in the world politics. That's why Germany, under the leadership of Bismarck, they started signing treaties with the other countries. So Germany here made or formed Triple Alliance against France. Okay. On the other hand, another group was there, that is Triple Entity or Triple Entente. Okay, mainly it was formed in 1907. Okay, 1907. So Triple Alliance countries were Germany, Italy, Austria, Hungary, and after that in Triple Entity, England, France, and Russia. Okay, so these three countries they form Triple Entity. So mainly the First World War was fought between these two groups like Triple Alliance and Triple Entity. And Triple Entity mainly they are also known as Allied forces, and Triple Alliance known as the Central Force. Clear? Now coming to the causes of the First World War. As I said before, under causes you have to study about only the nationalism, imperialism, after that armament race and division of Europe,
And division of Europe, here already I have explained what was the division of Europe. Okay, now coming to the causes of the First World War. And the first cause is nationalism and imperialism according to your further reduced syllabus. So nationalism and imperialism. What is nationalism? और ये nationalism कैसे एक world war की वजह बन सकता है? Nationalism तो मतलब अच्छा है, feelings for the country, love for one's own country. और जानते हैं कि नेशनलिज्म क्या है. सो नेशनलिज्म रेफर्स टू द सेंस ऑफ यूनिटी फेल्ड बाय द पीपल, ओके, हु शेयर्स अ कॉमन हिस्ट्री, लैंग्वेज, कल्चर. ओके, इन द लेटर हाफ ऑफ द 19th century दिस फीलिंग ऑफ यूनिटी टर्न्ड इनटू एक्सट्रीम प्राइड. इसका मतलब है कि जो नेशनलिज्म था, नेशनलिज्म अगर सिंपली बोला जाए कि लव फॉर द कंट्री, फीलिंग फॉर द कंट्री, वो अब तब तक ठीक था जब लव फॉर वंस ओन कंट्री. लेकिन वो कहीं ना कहीं 19th सेंचुरी में आके, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज में, वो एक्सट्रीम लेवल में आ गया, एक्सट्रीम लेवल में आ गया. जैसे कि और जो एक्सट्रीम नेशनलिज्म होता है उसी को और एक टर्म हम यूज कर सकते हैं कि जो एग्रेसिव नेशनलिज्म. एग्रेसिव नेशनलिज्म अगर देखा जाए कि एग्रेसिव नेशनलिज्म है क्या, तो इट मीन फॉर लव फॉर वंस ओन कंट्री एंड हैट्रेड फॉर अदर कंट्रीज. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि नेशनलिज्म हम मान रहे हैं, हम अपनी कंट्री को प्यार कर रहे हैं, लव कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो दूसरा कंट्री है उसको अगर हेट करते हैं तो उसको बोलते हैं कि एग्रेसिव नेशनलिज्म. तो यूरोपियन जो भी कंट्रीज था या फिर उस टाइम जर्मनी, इंग्लैंड, वो अपने कंट्री को सुपीरियर समझते थे और जो भी एक्टिविटीज होता था वो अपनी कंट्री के जो बेनिफिट्स के लिए होता था, वो किसी दूसरे कंट्री के बारे में सोचता ही नहीं था. और वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की ये जो टोटल स्टोरी है, इसमें 1870 ये जो ईयर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बहुत सारे ऐसे रीजंस है कि वाई 1870 इज इंपॉर्टेंट. तो इस यहाँ पे अगर देखा जाए कि जर्मनी, ओके, जर्मनी या फिर इटली, जर्मनी, इटली, ये जो कंट्रीज है 1870, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट ईयर है कि उस टाइम जर्मनी यूनाइट हुआ था. इससे पहले कोई यूनाइटेड जर्मनी था नहीं. तो ना 1870 अंडर द लीडरशिप ऑफ बिस्मार्क, और इटली में भी जो नेशनल मूवमेंट्स वगैरह सब हुए, उसके बाद 1870 में ये सब क्या हुआ, यूनाइट हुए. जैसे कि जर्मनी एज यूनाइटेड जर्मनी वो फॉर्म किया अंडर द लीडरशिप ऑफ बिस्मार्क, ये हम जानते हैं. और उसके साथ साथ और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि 1870 की में जो वॉर हुआ था, फ्रैंको प्राशियन वॉर. फ्रैंको प्राशियन वॉर में प्राशिया मीन्स जो जर्मनी का पहले प्राशिया बोला जाता था या फिर जर्मनी का एक प्रोविंस प्राशिया. तो प्राशिया के साथ फ्रांस के साथ जो वॉर हुआ था 1870 में, वहां पे बहुत सारे जो टेरिटोरीज फ्रांस के थे वो जर्मनी कैप्चर कर लिए थे. उस वॉर में जीत गया था जर्मनी, तो जर्मनी ने बहुत सारे जो टेरिटोरी था फ्रांस की वो कैप्चर कर ली. अभी फ्रांस का भी एक टारगेट था कि टू गेट देयर लॉस्ट टेरिटोरीज फ्रॉम जर्मनी. तो फ्रांस को भी जो जर्मनी में जितने भी टेरिटोरीज लॉस्ट हुआ है उसको फिर से वापस लाना, ठीक है, जैसे कि फ्रैंको प्राशियन वॉर में हमने देखा है 1870 में. तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स था, जैसे कि मैंने एक दिया, जैसे कि फ्रांस वांटेड टू गेट बैक इट्स प्रोविंसेस और टेरिटोरीज अल्सास एंड लोरेन फ्रॉम जर्मनी, जो कि वॉर ऑफ सेडन के दौरान वो लॉस्ट किया था, फिर वो कैप्चर कर लिया था. सिमिलरली इटली वांटेड टू गेट बैक इट्स टेरिटोरी ऑफ ट्रेंटिनो ट्रिएस्ट फ्रॉम ऑस्ट्रिया. ओके, ऑस्ट्रिया से इटली जो है वो ट्रेंटिनो ट्रिएस्ट, ये दो जो है वो चाह रहे थे, मतलब नेशनल इंटरेस्ट के लिए वो कंट्रीज जो था एक दूसरे के साथ लड़ाई शुरू की. तो नेशनलिज्म एंड एग्रेसिव नेशनलिज्म के बाद जो आते हैं वह इंपीरियलिज्म. नाउ व्हाट इज इंपीरियलिज्म? इंपीरियलिज्म is a system by which a powerful nation used to establish its control over another country. अगर एग्जांपल दिया जाए तो जैसे कि ब्रिटेन, they made India their colony and they ruled India for 200 years, approximately 200 years. तो ये भी एक इंपीरियलिज्म था. तो जैसे कि मैंने बोला है कि यूरोपियन कंट्रीज जो था, इंग्लैंड, फ्रांस, पोर्तुगल, स्पेन, ओके, जो भी कंट्रीज थे उसका एक ह्यूज कॉलोनियल इन्फ्लुएंस था ऑल ओवर द वर्ल्ड. ओके, इंग्लैंड और ब्रिटेन हैड देयर कॉलोनीज ऑल ओवर द वर्ल्ड, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज. ओके, इसमें उन लोगों का कॉलोनीज था, ठीक है. और उसके साथ साथ जब 1870 में जर्मनी यूनाइट हुआ, या फिर जर्मनी भी उस इंपीरियलिज्म की जो रेस है उसमें लग गए. तो पहले इंग्लैंड, फ्रांस वो
पूरा वर्ल्ड में अपना कॉलोनियलाइजेशन या फिर कॉलोनीज बना रहे थे, अब उसके साथ साथ जर्मनी जो है वो भी उस रेस में आगे पार्टिसिपेट करने लगे। जर्मनी ऑल्सो वांटेड टू इंक्रीज इट्स पॉलिटिकल डोमिनेंस या फिर जो कॉलोनियल डोमिनेंस था ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो भी ये रेस में आ गए। तो ये जो सारे हैं वो कॉन्फ्लिक्ट सामने आया और यूरोपियन कंट्रीज में मेनली कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, जो कि एक बैकग्राउंड था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए। अभी आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, और नेक्स्ट पॉइंट इज रेस फॉर आर्मामेंट्स। अभी आर्मामेंट रेस और रेस फॉर द आर्म्स, ओके, जहां पे हर एक यूरोपियन कंट्रीज जो थे वो अपना जो मिलिट्री पावर है उसको इंक्रीज करने की कोशिश में लगे हुए थे। जैसे कि इंग्लैंड के पास तो पहले से ही एक स्ट्रॉन्गेस्ट नेवी था, और उसके साथ अभी 1870 के बाद जर्मनी की यूनिफिकेशन के बाद जर्मनी भी इस रेस में आ गए, और ये भी जो अपना मिलिट्री पावर है उसको इंक्रीज करने लगे। वैसे तो वो दिखाते थे कि जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसके लिए आर्म्स बढ़ा रहा है या फिर जो मिलिट्री पावर उसको बढ़ा रहा है, लेकिन मेनली टू प्रोटेक्ट देयर कॉलोनीज आउटसाइड द कंट्री। तो मेनली जो है यूरोपियन कंट्रीज जो है वो अपना जो आर्म्स है वो इंक्रीज करने लगे, मिलिट्री पावर जो है वो उसको इंक्रीज करने लगे। और एग्जांपल यहाँ पे एक देते हैं, जैसे कि जर्मनी 1912 में इंपरेटर बनाया, जो कि लार्जेस्ट वॉरशिप था, जो कि 1912 में बनाया गया, और उसका नाम था इंपरेटर। तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड के पास तो पहले से एक स्ट्रॉन्गेस्ट नेवी था या फिर वो मिलिट्रीली बहुत स्ट्रांग थे, तो जर्मनी भी उस रेस में आ गए, और जर्मनी भी अपने कंट्री को अच्छी तरह से और मिलिटरीली जो है वो पावरफुल बनाते गए। तो मेनली ये आर्म रेस कहीं ना कहीं जो यूरोपियन कंट्रीज था उसमें एक सस्पिशन लेके आए, या फिर यूरोपियन कंट्रीज में कॉन्फ्लिक्ट जो है वो धीरे धीरे स्टार्ट हुआ। और उस कमिंग टू द पॉइंट नंबर 3, एंड द पॉइंट नंबर 3 इज the division of Europe into two hostile groups. As I explained before also, or starting of the video also, that Europe was divided into two hostile groups just before the First World War. One was triple entity mainly formed by triple entity was formed in 1907 by England, France, and Triple Alliance was founded in 1882 by Germany, Austria, Hungary, and lastly Italy. Though after 1 year of the starting of the First World War, Italy became neutral. So mainly this was the division of Europe, and all the this division actually created tension, problem in the European politics, and all this led to the First World War. So mainly these three were the long-term causes behind the First World War, and according to your further reduced syllabus, you have to study only this, okay? And so after the long-term causes, now coming to the immediate cause behind the First World War, and in the immediate cause is the Sarajevo crisis, or Sarajevo murder case. Now what was that? Like Archduke Francis Ferdinand, the successor to the throne of Austro-Hungarian Empire, was assassinated at Sarajevo, capital of Bosnia, on 28th June 1940 by one of the member of Black Hand or Union of Death, and one of the secret society from Serbia, okay, and their main aim was to unite the Slav peoples into one or greater Serbia. So after the association, Austria declared Serbia as the guilty, and Austria declared war on Serbia, clear, on 28 July 1914, and this was the formal beginning of the First World War. And to support Serbia, Russia came forward, and Russia actually started supporting Serbia, and the war started between Austria and Russia. On the other hand, to support Austria, now Germany joined the war, and Germany firstly attacked on Russia, and after that on France on 3rd August, okay, 1914, and German troops marched into Belgium, and after that to press on to France on August 4, and on the same day British declared war on Germany. That means the First World War started between the two power, between the two forces, Allied forces and the Central Powers. Okay, the First World War started. Most of the countries of the world, directly or indirectly, they involved in the First World War. For example, our India was an indirect participant of the First World War, as India was a colony of the Britishers. So India also, or under the Britishers, India also participated in the First World War indirectly. Now the next topic you have in your textbook, that events of the First World War. Okay, but according to your further reduced syllabus, events are not there, or course of
the first world are not there. So now I'm just coming to the next topic or the last topic of this chapter. This is the consequences of the first world war or the impacts of the first world war. So in that consequences part, you need to study only about the Treaty of Versailles. Now one Treaty of Versailles mainly signed between, so many treaties were signed in the Paris Peace Conference, okay, held after the first world war, okay, mainly to maintain peace and security. One international organization was also founded, League of Nations, okay, and so many independent countries after the first world war, so many independent countries like Czechoslovakia, Poland, okay, like all these countries created. Many dynasties were declined, like Romanov dynasty in Russia, Hohenzollern dynasty in Germany, and Habsburg dynasty in Russia declined. So many political changes actually occurred after first world war, and so many treaties were signed between the allied power and the central power countries or central powers. Like for example, Treaty of Saint Germain was signed between allied power and the Austria. And the most important thing is the Treaty of Versailles, the most important treaty of the First World War, signed between the Allied force and Germany. Germany was forced to sign the treaty. Now I'll be covering the clauses or the terms of the Treaty of Versailles. Okay, now coming to the Treaty of Versailles. As a result of discussion at the Paris Peace Conference on 28th June 1919, the Treaty of Versailles was signed between the Allied power and Germany. Okay, now coming to the terms of the treaty. The main terms of the Treaty of Versailles were, firstly, the treaty declared Germany as guilty. कौन गिल्टी था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए? जर्मनी. इट वाज डिक्लेयर्ड बाय द अलाइड फोर्सेस. कम टू द नेक्स्ट वन. जर्मनी वाज रिक्वायर्ड टू पे फॉर द लॉस and damages, okay, by the allies during the war. The amount of reparation was fixed at $33 billion. तो $33 billion जो है वो एज रिपरेशन अलाइड फोर्सेस को देना था जर्मनी को. ये भी एक टर्म था ट्रीटी ऑफ वर्साइल का. और आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और ट्रीटी ऑफ वर्साइल के बाद जो कंट्री सबसे सफ़र किया है वो है जर्मनी. फर्स्टली तो उसको गिल्टी डिक्लेयर कर दिया गया और उसके बाद जो है $33 बिलियन डॉलर, ये जो एक ह्यूज अमाउंट होता है, इसको एक रिपरेशन देना पड़ेगा. ये एक टर्म में भी था. नेक्स्ट वन, द एरिया ऑफ राइन वैली. जब पहले जो जर्मनी के अंडर में था, जैसे कि राइन वैली वाज टू बी डीमिलिटराइज्ड एंड द जर्मन टेरिटरी वेस्ट ऑफ राइन वाज टू बी ऑक्युपाइड बाय द एलाइड ट्रूप्स फॉर 15 ईयर्स. तो राइन वैली जो पहले जर्मनी के अंडर तो था, उसमें डीमिलिटराइज किया गया, जर्मनी का डोमिनेंस था वो खत्म हो गया. नेक्स्ट वन अगर देखा जाए तो अल्सास एंड लोरेन. वीडियो शुरू करने जब किए थे तभी हम एक बार डिस्कस किए थे कि 1870 में जो वॉर हुआ था फ्रांस के साथ जर्मनी का, तो उस वॉर में जर्मनी जीत गया था और अल्सास लोरेन जो है वो फ्रांस से कैप्चर कर लिए थे. अभी ट्रीटी ऑफ वर्साइल के द्वारा फ्रांस जो है दे क्लेम्ड देयर टेरिटरीज अल्सास एंड लोरेन. क्लियर? सो अल्सास और लोरेन जो है वो फ्रांस को मिल रहा है ट्रीटी ऑफ वर्साइल, क्योंकि जर्मनी उस वॉर में हार गए थे तो सारे जो है वो जर्मनी को एक्सेप्ट करना पड़ा. दे वर फोर्स्ड टू साइन द ट्रीटी. ओके, उसके बाद जो है जर्मनी सीडेड पार्ट्स ऑफ हर प्री वॉर टेरिटोरीज टू डेनमार्क, बेल्जियम, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया एंड फ्रांस. जितने भी टेरिटोरीज वो नेबरिंग कंट्रीज से पहले कैप्चर किया हुआ था जर्मनी, तो उसको फिर छोड़ना पड़ा. जैसे कि बेल्जियम को जो पहले जर्मनी बेल्जियम की टेरिटोरीज कैप्चर किया तो उसको देना पड़ा, डेनमार्क को देना पड़ा. ठीक है, तो इसी तरह से जो जर्मनी की जो टेरिटोरी है वो नेबरिंग कंट्री में डिवाइड हो गए. उसके बाद अगर देखा जाए द कोल माइंस ऑफ जर्मन आर कॉल्ड सार वाज सीडेड टू फ्रांस फॉर 15 ईयर्स. जो कोल माइन जो एरिया था सार रीजन, ओके, फेमस फॉर कोल माइंस, तो उसको फ्रांस को दिया गया. ओके, एंड द एरिया वाज टू बी गवर्न बाय लीग ऑफ नेशंस. अच्छा, लीग ऑफ नेशन तब बने थे आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. तो जो सार वैली का जो गवर्न करेगा या फिर उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसको दिया गया? लीग ऑफ नेशंस को दिया गया. फॉर्मली जो है वो एलाइड पावर्स को ही दिया जा रहा था. उसके बाद जर्मनी लॉस्ट हर कॉलोनीज. तो पहले हमने देखा है कि जर्मनी को गिल्टी डिक्लेयर कर दिया गया, उसके बाद रिपरेशन मनी भी लिया गया, उसके बाद डिमांड किया गया, उसके बाद जो जर्मनी के जो टेरिटोरीज है वो नेबरिंग कंट्रीज क्लेम कर रहे थे तो उसको दिया गया. अब देखना है कि जर्मनी लॉस्ट ऑल हर कॉलोनीज. जो भी जर्मनी कॉलोनी बनाए थे एशियन अफ्रीका स्पेशली इसमें, तो वो जो कॉलोनीज था उसमें भी मेनली
एलाइड पावर जो है वो कब्जा करने लगे, जैसे कि ब्रिटेन, बेल्जियम, साउथ अफ्रीका एंड पोर्तुगल. क्लियर? सो Germany lost its colonial influence also, and after that most important thing is German colonies in the Pacific and the areas under her control in China were given to जापान को दिया गया. क्लियर? जो भी डोमिनेशन था जर्मनी की. नेक्स्ट अगर देखा जाए तो जर्मन आर्मी वाज रेस्ट्रिक्टेड. सो सिर्फ जर्मनी को गिल्टी नहीं डिक्लेयर किया गया, रिपरेशन मनी नहीं लिया गया, उसके साथ साथ जो है अपना कॉलोनियल इन्फ्लुएंस भी जर्मनी खो दिए, लॉस्ट हो गया. उसके साथ साथ अभी जो है जो मिलिट्री पावर कहीं ना कहीं, जब जर्मनी का जो मिलिट्री पावर है उसको घटा दिया गया, फिर रिड्यूस किया गया ताकि नेक्स्ट और कोई वॉर में वो नहीं आ पाए. ओके, ये हो गया. मतलब द जर्मन आर्मी वाज रेस्ट्रिक्टेड टू अ फोर्स ऑफ 1 लाख सोल्जर्स. 1 लाख ही सोल्जर्स रख पाएगा और नहीं, उसके ज़्यादा नहीं. द नेवी वाज लिमिटेड टू 15,000 मेन एंड 24 शिप्स. द एयर फोर्स एंड सबमरीन्स वेर बैंड. जर्मनी में वो बैन किया गया. और उसके बाद जो होता है द ट्रीटी अफर्म्ड द कंप्लीट इंडिपेंडेंस ऑफ बेल्जियम, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, जुगोस्लाविया. जितने भी कंट्री के नाम हमने लिए तो पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के से पहले वो कहीं ना कहीं जर्मनी के अंडर था. ठीक है, तो इन सब कंट्री को क्या मिला था? इंडिपेंडेंस मिला था. और these countries actually created after the first world war. Okay, and lastly another last one is there in your textbook, like that Covenant of the League of Nations was added to the Treaty of Versailles. So the Covenant of the League of Nations was added to the Treaty of Versailles. तो mainly ये जो था terms था mainly the terms of the Treaty of Versailles. और ट्रीटी ऑफ वर्साइल के बाद ही मेनली जो है जर्मनी ये सारे कुछ खो दिए, अपना टेरिटोरी, कॉलोनियल इन्फ्लुएंस के साथ साथ मिलिट्री पावर एंड ऑल. और ये जो है उस टाइम की जो गवर्नमेंट था, हिवर्ट के अंडर में जो रिपब्लिकन गवर्नमेंट था जर्मनी में, दे वर फोर्स्ड टू साइन द ट्रीटी एंड इट वाज हार्श एंड ह्यूमिलेटिंग फॉर जर्मनी. और जर्मन पीपल जो थे वो एक्चुअली रिवेंज लेना चाहते थे ट्रीटी ऑफ वर्साइल के खिलाफ, और उसको सर्च था एक लीडर की, तभी उसको मिला था हिटलर, जो कि प्रॉमिस किया था पीपल से कि जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल में जो भी ह्यूमिलेशन हुआ उसका बदला लेने की. और फिर हमने देखा है कि हिटलर, अंडर हिटलर और हिज लीडरशिप, जर्मनी बिकेम अ सुपर पावर एंड पार्टिसिपेटेड इन अनदर वर्ल्ड वॉर, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. अभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में. सेकेंड वर्ल्ड वॉर है चैप्टर नंबर 12 में, जैसे कि चैप्टर नंबर 11 तो है नहीं, रिड्यूस हो चुके हैं, राइज ऑफ डिक्टेटरशिप. सो स्टूडेंट्स, दिस वाज मेनली चैप्टर नंबर 10 क्लास 10 ICSE. अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखना है, इसको सॉल्व करने की कोशिश हम करेंगे. और उसके साथ साथ जो है सारे जो क्लास 10 के चैप्टर्स उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे. तो कीप वॉचिंग माय चैनल, प्लीज सपोर्ट माय चैनल. और अगर ये वीडियो अच्छा लगा, थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर देना, शेयर करना दोस्तों में, ताकि वो भी देख पाए, जान पाए कि चैप्टर नंबर 10 में एक्चुअली है क्या, क्या स्टडी करना है, क्या स्टडी नहीं करना है, कैसे स्टडी करना है. और वर्ल्ड हिस्ट्री से अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वो लेके भी एक वीडियो बनाएंगे एग्जाम से पहले. तो कीप वॉचिंग हिस्ट्री ऑनलाइन. अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर करना दोस्तों में. एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्लीज सपोर्ट माय चैनल फॉर मोर वीडियोस, फॉर मोर अपडेट्स and for more chapter wise discussions of history. Thank you so much for watching. Thank you.